बच्चों आपको बुक नजर आ रही है? स्क्रीन पे आपको बुक नजर आ रही है? यस मैम। Good morning, all of you. Now today we are going to continue with the chapter feudalism. So yesterday we studied about unitary form of government, difference between unitary and feudal form of government. Then 7 to 8 features of feudal government, and how these federations were formed through two routes. One was coming together federation, and the other was holding together federations. So we studied in detail about these two types of federations and the countries which have these types of federations. Then now today we are going to start with what makes India a feudal country, because we are living in India, so we are mainly concerned about the feudal character of our country, that how feudalism came into existence in India, how it is working, what is the base of feudal character of characteristic of India. Now feudalism basically, as all of you know already, that it is the sharing of power in a vertical manner from top to the bottom. So for feudal form of government, different levels of government is very important. Like in a country, there should be one central government at the top, then provincial or the state government, and maybe panchayat level bhi ho sakta hai, grassroots level pe. So different vertical division of government is very important. Now then power is shared between these different constituent units. एंड फेडरल का जो है एक बहुत फेडरलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि सिर्फ आप पावर डिवाइड करने से नहीं होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह से मतलब अननेसेसरी जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, स्टेट गवर्नमेंट में, तभी उसे फेडरल माना जाएगा। ठीक है। नाउ व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया जो है इट इज़ अ फेडरल कंट्री, बट व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस व्हिच मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। ऐसा हमारे संविधान में क्या दिया हुआ है, व्हाट ऑल इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच मेंटेन्स और व्हिच सस्टेन्स दैट इंडिया इज गोइंग टू रिमेन फेडरल थ्रू आउट। तो हमारे संविधान में ऐसा क्या दिया हुआ है, किस तरह से पावर्स को डिवाइड किया गया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। So for this purpose, if this question comes in the examination, that how will you prove that India is a federal country, or how power is divided between different levels of government? So you should know that in our constitution there is clear division of power on different topics or departments. There are three lists: union list, state list, and concurrent list. आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट ऑल दिस, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा इसको। तो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके बीच में जो है पावर्स डिवाइडेड हैं, और वो किस मैटर पे क्या डिसीजन लेंगे, उनकी कितनी पावर है, ये सब ऑलरेडी जो है तीन कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। तो एक है आपकी यूनियन लिस्ट। तो एज द नेम सजेस्ट यूनियन, तो ये आप समझ सकते हो, यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इस लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, ऑल दोज सब्जेक्ट्स आर गिवन which are of national importance for whole citizen of India. All right. So union list contains all those subjects which have national importance. छोटे मोटे जो मुद्दे होते हैं वो यूनियन लिस्ट में नहीं है, लेकिन जो एक पूरे देश को प्रभावित करने वाले जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मुद्दे हैं, वो यूनियन लिस्ट में है। सच एज डिफेंस of the country, foreign affairs, banking, communications, and currency. ये all these topics I have already explained to you in yesterday's class. Like defense is of national importance. जब भी हमारी जो किसी देश के साथ लड़ाई होती है, कुछ वॉर होती है, तो उसमें कोई एक स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट इंडिया एज ए होल पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। तो इट मीन्स जो डिफेंस है, इट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड आर्मी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ओनली। आर्मी कभी भी स्टेट के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। Then foreign affairs. Foreign affairs means that what kind of relation India is going to have with our with the neighbors or with the other countries of the world. It is the matter of union list or the central government. कोई भी यूपी, बिहार, उत्तराखंड अपने आप से किसी भी देश के साथ अलग रिलेशन नहीं रख सकता। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर हैव वेरी सो रिलेशन विद द पाकिस्तान, वी आर नॉट इन अ वेरी हेल्थी रिलेशन विद द पाकिस्तान, इंडिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जम्मू कश्मीर ये कहे कि नहीं, हम तो पाकिस्तान के साथ अपना अलग से जो है रिलेशन रखेंगे उनके साथ।
या उत्तराखंड ये कहे कि नहीं हम तो हमारी चाइना के साथ बहुत अच्छी रिलेशन नहीं है, तो उत्तराखंड कहे नहीं वो हमारा नेबर है, हम तो अलग एक पॉलिसी फॉलो करेंगे, चाइना के साथ उससे फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे. It is not possible because we are representing India as a whole, and none of the state have the right to secretly और किसी भी फॉर्म में किसी दूसरे देश से अपनी जो है फॉरेन जो अफेयर्स को वो चला सके. ठीक है. सो फॉरेन अफेयर्स किस देश के साथ हमें कैसे रिश्ते रखने हैं, हमें कैसा व्यापार करना है, ट्रेड करना है, किस तरह के हमारी उनके साथ रिलेशन होना चाहिए, चाहे रशिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे चाइना है, पाकिस्तान है. इट इज मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सो इट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट. नाउ banking is also a very important thing, so it also comes under union list. देन कम्युनिकेशन, एज आई सेड कम्युनिकेशन जो है आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो हमारा जो कम्युनिकेशन है, लाइक जो कम्युनिकेशन मीन्स कि जो आपका सैटेलाइट्स जो भी होती है, जो एक नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ है, जितना हमारा सैटेलाइट सिस्टम डेवलप होगा उतना ही इंडिया जो है डेवलप करेगा. तो इट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट. ये सब जो है कोई हम स्टेट को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वास्ट, बहुत ही बड़ी चीज़ होती है कि ये. देन करेंसी, नोट छापना, कितना नोट छापना है, नहीं छापना, इट ऑल्सो कम्स अंडर यूनियन गवर्नमेंट. इसे स्टेट नहीं कि अपनी मनमानी तरीके से जो है हर स्टेट अपना अपना करेंसी चला दे या कभी भी मनमानी तरीके से उसे मिट कर दे. नाउ दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ uniform policy on these matters throughout the country. All right, so all these are national important issues, and on these topics a uniform policy is required throughout India. हम इन मुद्दों पर अलग अलग नीति हर स्टेट में नहीं बना सकते. जैसे मैंने अभी आपको सब बता दिया है कि हर राज्य अपनी आर्मी नहीं रख सकता, हर स्टेट जो है भारत का वो करेंसी नहीं छाप सकता, या हर स्टेट फॉरेन अफेयर्स अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकता. That's why a uniform policy is required for whole India, and that's why it comes under all these are of national importance, and rules and regulations are made by the union government only on these matters. The union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list. So it is very important that only union government or the central government can make laws on these subjects, and there should be no interference of the states. Now, second is our state list. State list contains subjects of state and local importance. Now, state list is that list in which all those subjects are given which are related to that particular related to the states, and it is of local importance, such as police, trade, commerce, agriculture, and irrigation. So these subjects are included in the state list, and only the state government has the authority to make laws or rules and regulations on these subjects. Now next is, आई डोंट नो कि जो है मेरी बुक में ऐसा है कि नहीं है कि यहाँ पे देखो चीज़ें दी नहीं हुई है, मतलब जो थर्ड टॉपिक है वो नहीं दिया हुआ है, बाकी कंकरेंट लिस्ट होगा इसमें, पता नहीं वो कहाँ चला गया. तो लास्ट जो है वो आपका है कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट जो है आपका उसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है वो उस पर काम कर सकती हैं, लाइक फॉरेस्ट है, ट्रेड है, ट्रेड यूनियंस है, मैरिज है, एडॉप्शन एंड सक्सेशन एंड एजुकेशन ऑल्सो. अब यहाँ से पता नहीं कहाँ डिलीट हो गया, मेरे पेज पे है नहीं. तो ये जो भी टॉपिक्स हैं दे आर ऑफ द ये स्टेट और नेशनल इंपॉर्टेंस दोनों के हैं, इसीलिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम कर सकती हैं. जैसे आपका एजुकेशन में आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना अधिकार होता है. ठीक है, तो उसे हम कंकरेंट लिस्ट में डालते हैं. लेकिन कंकरेंट लिस्ट में मान लो कभी कोई टकराव हो गया, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी उसी की बात को माना जाएगा, जो कि कंकरेंट लिस्ट की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, नॉट ऑफ स्टेट लिस्ट. Both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in the list. If their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. As I said just now, if there is any clash between the central government and the state government, then central government जो बनाई हुई लॉ होगी वही प्रिवेल होगी, उसी को माना जाएगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की. ठीक है, ऑन द कंकरेंट लॉ इशू. नाउ अब हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या दिया हुआ है. What about subjects that do not fall in any of the three lists, or subjects like computer software that came up after the constitution was made? According to our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary
सब्जेक्ट। इनको हम क्या कहते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि जब हमारा संविधान बन गया, संविधान हमारे बने हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसके बाद बहुत सारे जो है टॉपिक्स हमारे सामने आए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे सामने आए, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, लाइक ट्विटर आपका हो गया, या फिर ये जो जितने भी आप ऐप्स देख रहे हो, तो इनके ऊपर हमारे संविधान में कोई बात नहीं कही गई है, क्योंकि उस समय ये सारी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, तो आज के समय हमको इनको रेसिडुअरी मतलब जो बचे हुए जो टॉपिक्स होते हैं, लेफ्ट ओवर टॉपिक्स होते हैं, उन पे ये कहा गया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो जो है लेजिस्लेट कर सकती है, वो उस पर कानून बना सकती है। We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जहाँ जहाँ भी, जैसे इंडिया में है, आपका बेल्जियम में है या स्पेन में है, इन देशों में जो आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, यहाँ पे अब जैसे इंडिया में देख लो आप, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर, मतलब वैसे तो पावर सबको दी गई है, बट कुछ परसेंटेज में सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट के उससे। एंड इंडिया में एक और बात है, ऑल्दो वी आर फेडरेशन, बट यहाँ पे कुछ जो स्टेट्स हैं, देयर आर सर्टेन स्टेट्स विच आर गिवन स्पेशल प्रोविजंस और स्पेशल स्टेटस। सम स्टेट्स enjoy a special status such as असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम एंड जम्मू कश्मीर का तो आप जानते ही हो। ऑल्दो ये बात अलग है कि अब इनको जो है डिवाइड करके जो है लद्दाख एक आपका जो है, और जम्मू कश्मीर, इनको अलग अलग जो है यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। और जो इनका जिस आर्टिकल की वजह से इन्हें स्पेशल प्रोविजन मिला था, आर्टिकल 370, उसको अब जो है उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है ये जो स्टेट्स, इनको स्पेशल स्टेटस इंडिया में मिल रहा था, उनका अलग से संविधान था। और यहाँ पे जो दूसरे जगह के लोग हैं, वहाँ इन स्टेट्स में ना तो लैंड खरीद सकते हैं, ना तो कोई परमानेंट जो है घर बना सकते हैं, ना जमीन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो वैसे इन स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन हमारे संविधान में इसलिए दिया गया था क्योंकि इनका जो कल्चर है, इनका जो ट्रेडिशन है, और जो इनकी जो भी इनके एथनिक कॉम्पोजिशन है, वो पूरे भारत से भिन्न है। तो इनको बचा के रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए इनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया था। Similar special provisions exist for some other states of India as well. There are some units of Indian Union which enjoy very little power. ठीक है, तो कुछ इंडिया में ऐसे स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल पावर मिली हुई है, और कुछ अलग से उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, और कुछ इंडिया में ऐसे जो है यूनिट्स हैं जिनके पास बहुत ही कम पावर है। फॉर एग्जाम्पल यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज वो आपके जो है यूनिट्स होते हैं जो कि बहुत जो कि ना इतने बड़े हैं कि उनको हम स्टेट बना सकें, और ना वो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें किसी और स्टेट के साथ मर्ज कर सकें। इसलिए हमने उन्हें इंडिपेंडेंट ही रहने दिया और उन्हें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। ठीक है, तो जैसे आपका दिल्ली है, तो दिल्ली है, लक्षद्वीप है, या फिर आपका चंडीगढ़ है, ये अपने आप में बहुत छोटे नहीं है, तो हम इन्हें किसी और स्टेट के साथ भी मर्ज नहीं कर सकते, और इतने बड़े भी नहीं है कि हम इन्हें जो है स्पेशल एक अलग से कोई स्टेट बना दे। तो इसलिए इन्हें हमने एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट छोड़ दिया, और इन्हें हमने जो है यूनियन टेरिटरी कह दिया। अब यूनियन टेरिटरी जो है वो किसके अंडर फॉल होती है? अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बस दिल्ली में ही सीएम है, दिल्ली में ही, न्यू दिल्ली में सीएम है, और एलजी है उनके ऊपर लेफ्टिनेंट जो है आपके गवर्नर। बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं सब में आपके जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है, वहाँ पे जो है सीएम नहीं होते हैं। और अगर कोई भी मतलब लेजिस्लेशन करना होता है तो किसके अंडर में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये स्टेट्स हैं आपके, जो स्मॉल यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनिट्स हैं, इनके ऊपर कौन लेजिस्लेट कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में कुछ ऐसी मतलब है कि जो आपके ज्यादा पावरफुल है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज समहाउ मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। बट इतना ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट डोमिनेट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट करती है स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसा भी नहीं है। देन एक और जगह हम कह सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट मोर पावरफुल है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, बट हाउ इट इज, बट स्टिल यूनियन गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो होल्डिंग टुगेदर में ये चीज रखी गई है कि स्टेट्स को पावर दी गई है, बट जो है कुछ रेशियो में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मोर पावरफुल बना के रखा गया है, ताकि वो पूरे भारत को और पूरे स्टेट्स को जोड़ कर रखे। ठीक है, अगर हम इक्वल पावर दे देंगे ना सबको, तो हर स्टेट अपनी मनमानी कर सकता है। तो इसीलिए होल्डिंग टुगेदर, जैसे इंडिया में जो फेडरेशन है उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर, दे हैव देयर सेपरेट जुरिसडिक्शन, बट स्टिल द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द have they have upper hand as compared to state government.
Now one more thing which I'm going to prove that how Indian government is more powerful is the the area of making laws. आपको पता है जब भी कोई कानून बनता है, ठीक है, तो उसमें वो कानून कहाँ बनाया जाता है? पार्लियामेंट में, और वो भी लोकसभा में। ठीक है, तो आपको पता है कि लोकसभा में जो है आपके यूनियन गवर्नमेंट बैठती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और वो जो कानून बनाती है वही फाइनली माना जाता है। ऑल्दो उसमें कई स्टेप्स होते हैं कि लोकसभा ने पास किया, फिर वो राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, लेकिन राज्यसभा और प्रेसिडेंट का जो होता है वो बहुत ही नाम का ही होता है। अगर राज्यसभा ने और प्रेसिडेंट ने उसको मना भी कर दिया तो भी वो, इफ इट इज दैट पर्टिकुलर बिल और लॉ इज पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन वो पास माना जाता है। इट मीन्स दैट यूनियन गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द योर स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सब आपके हो गए। द जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि इंडिया में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अथॉरिटी होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, और एंड इट इज नोन एज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये पावर किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है, संविधान की जो चीजें उनको फॉलो नहीं कर रही है, तो वो जो है क्या कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब रोक भी सकती है, किसी भी कानून को वो रोकने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये आपने पढ़ लिया कि हाउ इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। तो सिंपल सी बात है कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री बिकॉज द पावर्स एंड द सब्जेक्ट्स टू रूल और लेजिस्लेट ओवर दोज सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड in the form of concurrent list, in the form of union list, state list and concurrent list। तो इन तीनों ही लिस्ट में डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और उन सब्जेक्ट पे लेजिस्लेशन का जो पावर है, कानून बनाने का जो पावर है, ये डिफरेंट गवर्नमेंट्स में डिवाइडेड है। कोई एक दूसरे के उसमें सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हम एग्रीकल्चर जो है यूपी की उसमें इंटरफेयर कर सके, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उसके जुरिसडिक्शन में नहीं आता है कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है। अब कोई स्टेट ये चाहे कि हम अपनी आर्मी रख लें या आर्मी को हम डायरेक्ट करें, अब क्योंकि हर स्टेट में आपको आर्मी दिखती है, हर जगह कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, तो आप चाहें कि आर्मी को हम अपने तरीके से काम करवाएं, वो पर्टिकुलर स्टेट अगर कहे तो वो आर्मी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, बिकॉज आर डिफेंस इज अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सबके अपने अपने सब्जेक्ट है, सबके अपने अपने एरियाज है जिसमें उन्हें काम करना होता है। तो इससे पता चलता है कि आपके जो फेडरलिज्म है इंडिया में जो है पावर डिवाइड करके, सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके मेंटेन किया जाता है। नाउ हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? फेडरलिज्म को हम इंडिया में प्रैक्टिस कैसे करते हैं, अब वो भी हम देखते हैं। नाउ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इंडिया में जो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। इफ यू लुक एट the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2019, you will be surprised by the extent of changes। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखो, इसका मेन लिंग्विस्टिक स्टेट्स का ये मतलब है कि जब हमें फ्रीडम मिला था, आज़ादी मिली थी, तो हमारे पास 14 स्टेट्स थे और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, और उनको एक साथ जो है एक बाउंड्री में जो है कॉन्स्टिट्यूट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और बहुत सारे ऐसे जो है हमारे स्टेट्स थे जो कि अपना एक अपनी जो मतलब उनका भी अलग से स्टेट क्रिएट भी नहीं हुआ था, लेकिन वो चाहते थे कि हमारा लैंग्वेज के बेसिस पे जो है स्टेट क्रिएट हो। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट। अब जैसे आपका आज का तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटका, ये सब पहले एक साथ मिले हुए थे, इनकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं थी। इनको जो है इनको बाउंड्री जो है डिमार्केट करके नए स्टेट, बहुत सारे नए स्टेट्स बनाए गए। This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state। ठीक है, तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो 1953 के टाइम में जो है काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। उन्होंने कहा कि जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं उनको तेलुगु स्पीकर्स के लिए हमें अलग से स्टेट चाहिए। हम जो हैं जो अलग और जो स्टेट्स हैं लाइक कर्नाटक कन्नड़ बोलने वाले या फिर तेलुगु मलयालम बोलने वाले, हम उनके साथ नहीं रहेंगे, हिंदी स्पीकर्स के साथ नहीं रहेंगे। वी वांट अ सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकर्स।
तो इस पे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा इस पे एक मतलब लोगों ने, कई लोग थे ऐसे उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी बहुत दिनों तक, तो काफ़ी ज़्यादा ये मामला उसमें रहा और फाइनली इंडियन जो गवर्नमेंट थी वो मान गई और फर्स्ट स्टेट 1953-54 में बन के तैयार हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश जो है वो एक ऐसा राज्य है जो कि वहाँ पे सिर्फ तेलुगु बोलने वाले जो लोग हैं उन्हीं के लिए वो बनाया गया था, क्योंकि उनका फिक्स कल्चर है, एथनिसिटी है एंड ज्योग्राफी है। These include states like Nagaland. नागालैंड किसके लिए? नागालैंड के लोगों के लिए। उत्तराखंड, झारखंड। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to disintegration of the country. जैसे कि अब देखो बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो है डिवीजन ना हो, क्योंकि उन्हें ये लगता था, कुछ हमारे जो लीडर्स थे उन्हें लगता था कि अगर हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स क्रिएट कर दिए तो क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, जो कंट्री है वो टूट जाएगी, उसमें कभी भी यूनिटी नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए आपका जो आंध्र प्रदेश है वो तेलुगु वालों के लिए, कर्नाटका कन्नड़ स्पीकर्स के लिए है, मलयालम है केरलाइट्स के लिए, एंड देन जो आपका तमिलनाडु है वो जो आपके तमिल स्पीकर्स के लिए। लेकिन अभी भी इंडिया में वो सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स का क्रिएशन हुआ वो हमारे लिए बेनिफिशियल प्रूफ हुआ। आज के टाइम में हम इसे फील कर सकते हैं, ना कि हमारे लिए डिजास्टर्स प्रूफ हुआ। तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करके हमने इंडिया के फेडरल कैरेक्टर को मेंटेन करके रखा। मतलब भारत में जितने लोग हैं डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, उनको हमने उनको पहचान दी, उनको हमने उनका सेपरेट स्टेट दिया ताकि वो अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को मेंटेन करके रख सकें। जबकि हमने सोचा लैंग्वेज के बेसिस पे 4 स्टेट बना रखे हैं, 4 और भी बहुत स्टेट्स होंगे। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया था, उसने लैंग्वेज को ही जो आपके तमिल स्पीकर्स थे उनकी लैंग्वेज को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। लेकिन इंडिया ने लैंग्वेज के बेसिस पर डिफरेंट स्टेट्स का क्रिएशन किया, लोगों की डिमांड को फुलफिल किया और आज जो है बहुत अच्छे से हमारा जो फेडरल करेक्टर है वो काम कर रहा है। देन लैंग्वेज पॉलिसी भारत की, देखो लैंग्वेज एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, लोग अपने लैंग्वेज को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, ठीक है। स्पेशली साउथ में तो अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे मतलब वो अपनी लैंग्वेज को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारे लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को क्रिएट करना और लैंग्वेज पॉलिसी बनाना हमारे संविधान के लिए बहुत एक वो था, चुनौती थी, ठीक है। नाउ लैंग्वेज पॉलिसी आप देख लीजिए भारत की, तो इंडिया में जो है बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होगा जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय हमने सिर्फ हिंदी को ही जो है अपनी राजभाषा बनाई थी, मतलब कि हमारे क्या बोलते हैं उसको, नेशनल लैंग्वेज। बट अगेन फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जो साउथ इंडिया के बहुत सारे लोग थे, जो लीडर्स थे संविधान सभा में, असेंबली में, उन्होंने कहा कि हम अगर हिंदी से हुई तो हम बाइकआउट कर देंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन में भाग नहीं लेंगे। तो इसलिए फिर इंग्लिश को भी जो है एक सेकेंड लैंग्वेज जो है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया में एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है। तो हमारे देश में हिंदी इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। A candidate in an examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages. तो आज भी आप देख सकते हो जब आप एग्जाम देने जाओगे 10th का 12th का, तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप इंग्लिश या हिंदी किसी में भी आप एग्जाम दे सकते हो। आपके सामने ये नहीं कहा गया कि आप हिंदी में ही दो या इंग्लिश में ही दो। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट्स की भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो कुछ स्टेट्स ऐसी है जिनका जो उनका काम होता है, कामकाज होता है, वो उनकी जो है लैंग्वेज में ही होता है। तो हमारे इंडिया में फेडरल कैरेक्टर कैसे इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है कि किसी के ऊपर भी लैंग्वेज को फोर्स नहीं किया गया है, नहीं आपको हिंदी में ही करना है या फिर आपको पर्टिकुलर जो है लैंग्वेज में ही करना है, क्योंकि हिंदी स्पीकर्स इंडिया में ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन हिंदी को किसी भी तरह से जो है थोपा नहीं गया। तो ये आप देख सकते हो किस तरह से इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। पहली चीज, इंडिया में जो स्टेट्स क्रिएट हुए इट इज ऑन द लैंग्वेज, बेसिस ऑफ लैंग्वेज। साउथ इंडिया के जितने स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट किए गए हैं ताकि उनको फ्रीडम मिल सके, उनके साथ पावर को शेयर किया जा सके, वो अपने लैंग्वेज और कल्चर को मेंटेन करके रख सके। सेकंड, लैंग्वेज पॉलिसी हमारे इंडिया की ऐसी है कि इसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश जो है वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, प्लस और भी आपकी 20 लैंग्वेजेस है जिनको जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और हर स्टेट की अपनी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जिसमें उनका सरकारी कामकाज होता है। तो एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी हम कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं कि आपको सिर्फ हिंदी में ही पेपर देना है या हिंदी में ही आपको इंटरव्यू देना है, आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। अब देखते हैं कि फेडरलिज्म सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में कैसे मेंटेन होती है। रीस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस
is one more way in which feudalism has been strengthened in practice. How the constitutional arrangement for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and the leaders follow these arrangements. ठीक है, अब हमारे संविधान ने देखो डिवाइड कर दिया है पावर कि आपको इन चीजों पे जो है कानून बनाना है और किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करना है। तो लेकिन अगर हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो संविधान की बातों को नहीं मानते, तो शायद हमारा जो काम है इतने सुचारू रूप से नहीं चल पाता। तो एक क्रेडिट हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस को भी देना पड़ेगा कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और इस चीज को फॉलो भी करते हैं। For a long time, the same party ruled both at the center and in most of the states. This meant that the state government did not exercise their rights as autonomous federal units. As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of feudalism. ठीक है, अब देखो इसमें ये केस क्या बता रहे हैं कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का जो है सिस्टम है। अब कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आज के टाइम में क्या है कि वैसे 50 इयर्स तक हमारे देश में ये था कि कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जो सेंट्रल में भी रूल कर रही थी और मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रूल चल रहा था। ठीक है, तो सेंट्रल में भी कांग्रेस और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी कांग्रेस। तो इस केस में क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स के मामलों में इंटरफेयर नहीं करती थी और ना ही कभी उन्हें परेशान करती थी कि किसी भी डिफरेंट चीज़ों को लेकर। लेकिन जब भी ऐसा इशू आता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जो डिफरेंट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंट गवर्नमेंट है, तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी कभी कभी कुछ इश्यूज में स्टेट गवर्नमेंट को जो है दबाने की कोशिश करती थी। तो इससे क्या होता है कि जो फेडरलिज्म का स्पिरिट था वो मतलब खतरे में पड़ जाता था, क्योंकि तो गलत बात थी। फेडरलिज्म में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर को ओवर रूल नहीं करेगी। लेकिन अब सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आज के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? एनडीए है, बीजेपी लेड एनडीए। और वेस्ट बंगाल में कौन है? अलग पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, यूपी में एनडीए की ही पार्टी है। तो भारत के मैक्सिमम स्टेट्स में एनडीए का ही रूल चल रहा है, एनडीए की गवर्नमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक है ना, लेकिन आपका जो पंजाब है या आपका जो ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट नहीं है, डिफरेंट गवर्नमेंट है, रीजनल पार्टीज है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर एनडीए ने ये क्या अगर एनडीए जो है सपोज उसने ये करना स्टार्ट कर दिया कि वो वेस्ट बंगाल के मामलों में इंटरफेयर कर रही है, वेस्ट बंगाल में को परेशान कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट को, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि फेडरलिज्म जो है वो सही तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रहा है। अभी आप जो चुनाव हुए थे वेस्ट बंगाल में, आपने देखा बहुत ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में काफी ज्यादा टकराव हुआ, बहुत ज्यादा। ठीक है, जो प्रधानमंत्री वहां पे रैली करने आ रहे थे उनके बीच में हर तरह का जो है अड़चने पैदा की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेट की तरफ से। कोई रैली करने जा रहा है तो उनके रैली के ऊपर जो है पथराव कर दिया जा रहा है, या फिर गुंडे जो है वहां पे अटैक कर दे रहे हैं। और फिर जो चीफ मिनिस्टर है वो कह रही है कि हमें पता ही नहीं है, ये हमारे इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, हमारे लोग नहीं थे ये, है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों ही जगह अलग अलग पार्टीज हैं और इस चीज में, और जब कंपटीशन ज्यादा होता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो था एक बहुत बड़ा एक वो था क्षेत्र, अगर उन्हें वो एनडीए उसे जीतना चाहती थी। ठीक है, तो इस मामले काफी टकराव हो जाता है। तो अब इसको फिर क्या हुआ, इसके आगे देखते हैं। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। 1990 के बाद इस स्थिति में बदलाव लाया गया। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। दिस वाज आल्सो द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, तो 1990 तक यही चीजें रहती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपकी कुछ और है, और अगर स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है तो वो उसको सप्रेस करने की कोशिश करती थी। बट 1990 के बाद क्या हुआ कि बहुत सारी रीजनल पार्टीज सामने आई। रीजनल पार्टीज मतलब क्या होती है? जो एक स्टेट से ही लिमिटेड होती है, एक या दो स्टेट्स में ही होती है। फॉर एग्जांपल बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की पार्टी है, वो भी स्टेट एक आपकी रीजनल पार्टी मानी जाएगी। समाजवादी पार्टी जिसमें अखिलेश यादव है, वो भी रीजनल पार्टी है आपकी। जो तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी की, वो भी आपकी रीजनल पार्टी है। तो ये जो रीजनल पार्टीज हैं ये सामने उभर के आई, और अब आज के टाइम में ये रीजनल पार्टीज बहुत स्ट्रांग है। ये कांग्रेस और आपकी जो बीजेपी है उनको भी जो है डिफरेंट स्टेट्स में नहीं जीतने देती है। अगर आज तक हम देखें तो यूपी में कौन सी पार्टी जीतती थी हमेशा? ये समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव या मायावती। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है बहुत सालों बाद कि जाके बीजेपी को उसमें बहुमत मिली है, और बहुत सालों से ममता बनर्जी ही वेस्ट बंगाल में जीत रही हैं। इसका मतलब कि कुछ स्टेट्स में रीजनल पार्टीज आर मोर पावरफुल देन द आपकी जो यूनियन नेशनल लेवल की पार्टीज हैं। और उसके बाद फिर एरा स्टार्ट हुआ कोलिजन गवर्नमेंट का।
कोलिजन गवर्नमेंट आप जानते हो क्या होता है. कोलिजन मीन्स व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स क्लियर मेजॉरिटी ड्यूरिंग द इलेक्शन रिजल्ट. So number of small parties with the bigger party they make their coalition and they prove their उसे क्या कहते हैं हम बहुमत. अपनी बहुमत जो है मेजोरिटी जब प्रूव कर लेते हो तो उस तरह की गवर्नमेंट जो होती है उसे हम कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं. लाइक एनडीए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी पार्टी जो सरकार है वो भी कोलिजन गवर्नमेंट है. नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी तो उसमें मेन है लेकिन उसके साथ साथ बहुत अदर पार्टी जैसे जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड और भी बहुत सारी पार्टीज है जो एनडीए जो बीजेपी के साथ मिक्स हो गई है. उनके साथ उसको अपना सपोर्ट दिया उन्होंने और जो है उसको एनडीए कहा गया है. वैसे यूपीए यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस जो कांग्रेस लेड अदर पार्टीज के साथ उन्होंने मिलकर बनाया है. तो जब मान लो इलेक्शन हुए, मान लो बिहार में इलेक्शन हुआ या फिर यूपी में इलेक्शन हुआ या फिर सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन हुआ, उस केस में जब नतीजा आता है तो किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है. तो उस केस में क्या होता है जो और अदर स्मॉल पार्टीज होती है उनसे बात की जाती है, गठबंधन बनाया जाता है कि भाई आप अपना सपोर्ट अपने एमएलए हमें दे दो, अपने एमपीज हमें दे दो, हम अपना जो है मेजोरिटी प्रूफ कर देंगे और अपनी सरकार बनाएंगे. ठीक है. तो इस तरह की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट. सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस. अलायंस बनता है विद मेनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर. तो यहाँ पे देखो कहने का मतलब ये है साफ, इसका मैं तुम्हें मतलब बता रही हूँ क्या कहा गया है. फेडरलिज्म में कोलिजन गवर्नमेंट का क्या एक फायदा होता है. देखो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सप्रेस करने की कोशिश करती थी 1990 से पहले. लेकिन जब से रीजनल पार्टीज सामने आई हैं और वो काफी स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज हैं तो सरकार जो है कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है. कोलिजन मतलब कि एक पार्टी उसको जब पूरा सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो अदर पार्टीज से सपोर्ट मांगती है और उसमें रीजनल पार्टीज भी होती है. ठीक है. तो रीजनल पार्टीज के सपोर्ट के थ्रू जो है हमारी सरकार बनाई जाती है नेशनल लेवल पे. अब ये जो रीजनल पार्टी जब सपोर्ट करेगी इसका मतलब क्या है कि जिस स्टेट की वो रीजनल पार्टी है उसका जो है दबदबा नेशनल गवर्नमेंट में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. अगर मान लो कोई भी पार्टी जेडीयू है जो बिहार की पार्टी है वो एनडीए के साथ मिली हुई है. ठीक है. तो जेडीयू जो एनडीए के साथ मिली हुई है, अब ये जो नीतीश कुमार की पार्टी शायद वो जेडीयू है, मुझे तो जेडीयू लग रहा है अगर गलत ना हूं तो ये सपोर्ट करती है एनडीए को. तो अब क्या है इस पार्टी का नेशनल उसमें काफी इंपॉर्टेंस है. ठीक है. तो अब क्या है कि बिहार में भी जेडीयू है और सेंट्रल में एनडीए. तो एक तरह से वो उसकी कोलिजन पार्टी है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार के मामले में कभी भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी क्योंकि पता है कि जेडीयू के सपोर्ट से हमने अपनी सरकार बनाई है. अगर जेडीयू ने अपना सपोर्ट खींच लिया तो हमारी सरकार गिर जाएगी. तो इससे क्या हुआ है कि जो रीजनल पार्टीज है उनकी इंपॉर्टेंस हमारी पॉलिटिक्स में बढ़ गई है. उनके सपोर्ट से कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, सरकारें बनाई जाती है सेंट्रल लेवल पे. तो अगर इन लोगों ने अपनी जो है हाथ खींच लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोलैप्स हो सकती है. इससे क्या होता है कि अब वो मामला नहीं रहा, अब रीजनल पार्टीज की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रीजनल पार्टीज के हेल्प के थ्रू सरकार बनाती है और इसीलिए जो है स्टेट्स को अब सेंट्रल गवर्नमेंट सप्रेस नहीं कर पाती है. ठीक है. तो ये हो गया हाउ फेडरलिज्म इज मेंटेन इन इंडिया. तो आज मुझे लगता है कि बहुत जो है ज्यादा आपने पढ़ ही लिया है. तो ये शायद चैप्टर हो गया या खत्म हो गया क्या, नहीं अभी है. ये है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. तो ये टॉपिक जो है हम कल पढ़ेंगे. आज हमने क्या पढ़ा अबाउट हाउ फेडरलिज्म इज फॉलोड इन इंडिया. जो फेडरलिज्म है वो किस तरह से फॉलो किया जाता है उसको मैंने आपको बता दिया कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट बनाया गया है. देन हाउ यूनियन इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट्स. तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि जो है लॉज जो भी बनाया जाता है वो लोकसभा में बनाया जाता है. लोकसभा में जो पास हो गया वो पास माना जाता है, उससे कोई भी जो है रोक नहीं सकता है. और जो भी यूनियन टेरिटरीज है उसमें यूनियन गवर्नमेंट ही रूल एंड रेगुलेशंस बना सकती है. तो इससे प्रूफ होता है कि हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है इट इज मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट. देन आपको मैंने बताया था कि कैसे इंडिया में जो है फेडरलिज्म जो है उसको प्रैक्टिस किया जाता है. तो उसमें मैंने आपको बताया कि इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं. देन लैंग्वेज पॉलिसी जो है हमारी वो भी सारे लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस देती है. एंड जो हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है उसमें अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को दबाती नहीं है क्योंकि अब रीजनल पार्टीज सामने आ चुकी है. रीजनल पार्टीज के सपोर्ट से कोलिजन गवर्नमेंट बनती है. सरकार अपनी सरकार जो पार्टीज अपनी सरकार बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे. तो अगर रीजनल पार्टीज का सपोर्ट नहीं होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी. इसीलिए जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनको भी अब इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो ये आपका जो हो गया ये टॉपिक आपका खत्म हो गया. अगर आप इसके ऊपर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.
कोई बच्चा कुछ पूछना चाहेगा? आपको बताया गया है, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो। लेकिन मैंने आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश की है कि इंडिया में फेडरलिज्म जो 3 लिस्ट हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स और सेंटर स्टेट रिलेशन, कॉलेज एंड गवर्नमेंट, ये टॉपिक आज मैंने कवर किया, तो आप इनको पढ़ना है। कल हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो तब तक आप जो है इसके ऊपर नोट्स बनाएंगे अच्छी अपने। मैं आपकी भले ही कॉपी ना देख रही हूँ अभी तक, लेकिन मैं किसी भी दिन जो है आप लोगों को बोलूंगी कि आप अपना जो है काम मुझे दिखाइए, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो अपना रेगुलरली जो है बेसिस पे काम करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और मुझे गूगल क्लासरूम पर सेंड करिए, ताकि मैं जो है वो चीज़ें देख पाऊँ। ठीक है।